السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت بلال اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا واقعہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے پہلے مؤذن یعنی اذان دینے والے تھے اور اسلام کی شروعاتی تاریخ میں سب سے زیادہ تکلیفیں سہنے والے صحابہ میں سے ایک تھے۔ ان کا پورا نام بلال بن رواح تھا اور وہ ایک افریقی غلام تھے۔ اسلام قبول کرنے پر جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو ان کے مالک امیہ بن خلف کو بہت غصہ آیا۔ اس وقت غلاموں سے انسانوں جیسا سلوک نہیں کیا جاتا تھا اور اگر کوئی غلام اسلام قبول کر لے تو اسے اور بھی سخت سزا دی جاتی تھی۔ آپ بلال رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک دن بھی حضرت بلال کو نہیں دکھتے تو آپ بے چین ہو کر رو پڑتے۔ جب آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان دیتے، جب اذان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو آپ پیارے نبی کا تصور کرتے اور آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی۔ ناظرین، دل کو چھو جانے والا سچا واقعہ آپ پورا سنیں، آپ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں ڈوب جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں داخل ہو گئے اور دیکھا کہ ایک نوجوان جو کہ حبشی معلوم ہوتا ہے چکی پیس رہا ہے اور جاروں قطار رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو تھک کر جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گیہوں کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا، جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے، میں تو ایک انسان ہوں، میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ میں ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں ساری عمر اس طرح رو رو کے زندگی گزارنا لکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا۔ ہاں، میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ چکی پیستا ہوں۔ وہ غلام خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ جب گندم ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جگائے بغیر واپس تشریف لے گئے۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو صلاح کار اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا، آپ اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے اور صبح خاموشی سے اپنے گھر میں تشریف لے آتے۔ چوتھی رات جب وہاں گئے تو اس غلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہیں اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہیں؟ ہم غلام سے نہ تو کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ، تو پھر آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ سب کچھ انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مکے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس غلام نے کہا، ہاں، میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے نبی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں، میں وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ وہ نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے، کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلام کا بھی اس قدر خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے کتنی تکلیف اور مشقت برداشت کی، لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ انہیں جان دینا تو گوارا تھا، لیکن اتنے شفیق اور مہربان نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔ آج دنیا انہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے جانتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اور محبت میں انہیں آپ کا غلام بنا کر رکھتی۔ دنیا
तक मिसाल बना दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला गलियों में यह कहते फिरते कि लोगों, तुमने कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है तो मुझे दिखा दो। फिर कहने लगे, अब मदीने में मेरा रहना दुश्वार है। उसके बाद आप शाम के शहर हल्क चले गए। तकरीबन 6 महीने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में फरमा रहे थे, ऐ बिलाल, यह क्या बेवफाई है, तुमने हमारे शहर आना ही छोड़ दिया। क्या हमारी मुलाकात का वक्त नहीं आया? ख्वाब के बेदार होते ही ऊँट पर सवार होकर लब्बैक या सैयदी या रसूलल्लाह कहते हुए मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। जब मदीना में दाखिल हुए तो सबसे पहले मस्जिद नबवी पहुंचकर हज़रत बिलाल की निगाहों ने आलमाए वर्तगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढना शुरू कर दिया। कभी मस्जिद में तलाश करते और कभी हुजरे में। जब कहीं ना पाया तो आपकी मजार मुबारक पर सर रखकर रोना शुरू कर दिया और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपने फरमाया था कि आकर मिलो। गुलाम हल्ब से बहरे मुलाकात हाजिर हुआ हूँ, ये कहा और बेहोश होकर मजार पर गिर पड़े। काफ़ी देर के बाद होश आया। शायद इतने में सारे मदीने में एक खबर फैल गई कि मुजने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला आ गए हैं। मदीने तैयबा के बूढ़े जवान मर्द, औरतें और बच्चे इकट्ठे होकर अर्ज करने लगे कि बिलाल, एक दफ़ा वह अजान सुना दो जो महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सुनते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, मैं माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ता हूँ तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ होता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से अपनी आँखों को ठंडक पहुँचाता। अब यह अल्फाज अदा करते हुए मैं किसे देखूँगा? सहाबा इकराम ने मशवरा दिया कि हसनैन करीबन से सिफारिश करवाई जाए। जब वह हजरत बिलाल को अजान के लिए कहेंगे तो वह इनकार नहीं कर सकेंगे। चुनाचे हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला ने हजरत बिलाल का हाथ पकड़कर फरमाया, ऐ बिलाल, हम आज आपसे वही अजान सुनना चाहते हैं जो आप हमारे नाना जान अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मस्जिद में सुनाते थे। अब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला इनकार नहीं कर सकते थे, लिहाजा उसी मुकाम पर खड़े होकर अजान दें जहां हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी हयात में दिया करते थे। बात की कैफियत का हाल कुतुब शेर में यूं बयान हुआ है, जब आप रज़ियल्लाहु ताला ने वह आवाज़ बुलंद होकर अल्लाहु अकबर कहा, मदीना मुनव्वरा गूंज उठा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते गए जज्बात में इजाफा होता गया। जब अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमा अदा किए, गूंज में मज़ीद इजाफा हो गया। जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के कलमा पढ़े तो तमाम लोग हटा के पर्दा नसीन ख़वातीन भी घरों से बाहर निकल आईं। जारी का अजीब आलम था। लोगों ने कहा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना मुनव्वरा में इस दिन से ज़्यादा रोने वाले मर्दोजन नहीं देखे गए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि अजान बिलाल रज़ियल्लाहु ताला को तराना इश्क करार देते हुए फरमाते हैं, अजल से तेरे इश्क का तारा बनी, नमाज उसकी इश्क का बहाना बनी। आस्के जुल्फ़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हजरत बिलाल हबशी कायनात की वह पहली अजीम और मुक़द्दस हस्ती हैं जिनको दुनिया के पहले मुअज्जिन होने का आला सर्फ हासिल हुआ। अल्लाह के रसूल ने खुद इरशाद फरमाया कि बिलाल किस कदर अच्छा आदमी है, वह तमाम मशीनों का सरदार है। आपके वालिद रिवार और वालिदा हमामा अरब की एक कबीले के ग़ुलाम थे। यह सरजमीन ने अरब का वह तारीख दौर था जब इंसान अक्लक की बस्तियों की गहराइयों में घिरा हुआ था और उस पर गुमराही मुसल्लत थी, और उस दौरे जहालत में सबसे मजलूम तबका ग़ुलाम का था, जिसे बुनियादी इंसानी हुकूक तो मिलना बहुत दूर की बात, सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारने का भी हक नहीं था। हजरत बिलाल
उमैया बिन कल्फ के गुलाम थे। वह अपने आका की बकरियां चराने पहाड़ों पर जाया करते थे और एक दिन आपका गुजर गार हिरा की तरफ से हुआ, जहां रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यार गार सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ तशरीफ फरमा थे। अल्लाह के रसूल गारदां ने उस हबशी नौजवान को देखा तो आपने अपने पास बुलाकर फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम्हारी इस्लाम के मुतालिक क्या राय है? हजरत बिलाल हबशी तो रसूल करीम के साथ से पहले ही मुतासिर हो चुके थे। फिर आकाए कौनैन का दिलकश अंदाज से गुफ्तगू तो हजरत बिलाल के मुँह से निकला, मैं आपके दीन को अच्छा पाता हूँ। यह कहकर हजरत बिलाल वापस लौट गए, मगर उनका दिल वहीं हुजूर की तरफ रह गया। दूसरे दिन फिर बकरियों को वहीं लेकर पहुँचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और ज़्यादा बातें सुनी तो दिल और भी बेकरार हो गया। आपने इस्लाम की पुकार पर लब्बैक कहते हुए कलमा शहादत पढ़ा, हुजूर के गुलामी की सनद हासिल फरमाई, आपके मुरीद होकर इस्लाम की दौलत से मालामाल हो गए। उस वक्त सैयदना हजरत बिलाल की उम्र मुबारक 28 बरस की थी। आप उन पहले 7 खुशनसीबों में से हैं जिनके लिए इस्लाम ने अपने दरवाजे खोल दिए। यह इस्लाम का अव्वल तरीन दौर था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से फ़िलहाल राजधानी से इस्लाम की तबलीग फरमा रहे थे, लेकिन इस्लाम का मेन फरीद और बाकी सारंग ज़्यादा से कुफ़ार मक्का से पोशीदा न रहा। उन्होंने जल्द ही महसूस कर लिया कि उनके पास साथियों, ख़ास तौर पर ग़ुलाम और ख़वातीन में तब्दीली आ गई है। उमैया बिन को जल्द ही खबर मिल गई कि उसका ग़ुलाम बिलाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बन गया है और उसका शुमार आपके साथियों में होता है। इस जुल्म की तादाद में सैयदना हजरत बिलाल हबशी पर जुल्म और सितम के पहाड़ गिरना शुरू कर दिए। हालांकि यह ज़मीन गर्मी की वजह से बहुत मशहूर थी, जो धूप में तांबे की तरह गर्म हो जाती थी। हजरत बिलाल को तांबे की ज़मीन पर लिटाया जाता था और आपके सीने पर भारी पत्थर रखते आपको दहकते हुए अंगारों पर लिटा देते। आपके बदन की चर्बी पिघल कर अंगारों को बुझा दिया करती थी, मगर आपकी जुबान मुबारक से आहा के सिवा कुछ ना निकलता। उमैया आपको कहता, अब भी तू मोहम्मद के खुदा से वाज आ जा, लेकिन इस्लाम और सरकार की मोहब्बत उनके सीने से दुनिया की कोई भी सख्त से सख्त सज़ा ख़त्म नहीं कर सकती थी। आपके सीने में इश्क़ रसूल की हकीकी समा रोशन थी। आप आशिक हबीबी खुदा थे। दुनिया की उन मरों से कहाँ तैयार को छोड़ते। हजरत उमर बिन आस फरमाते हैं कि मैंने हजरत बिलाल को इस हालत में देखा कि उमैया ने उनको ऐसी तपती हुई ज़मीन पर लिटा रखा था जिस पर अगर गोश्त भी रख दिया जाता तो वह भी जल जाता, लेकिन इस हालत में भी हज़रत बिलाल अल्लाह के सिवा किसी भी दूसरे माबूद का इनकार करते रहे और उमैया ने तैश में आकर उनके गले में रस्सी डाल दी और उन्हें मक्के के शरीर लड़कों के हवाले कर दिया। वह बदबख्त लड़के आपको मक्के की वादी में घसीटते हुए फिरते और तपती हुई अंगारा रेत पर आंधी मदद देते और आप पर पत्थरों का ढेर लगा देते थे, लेकिन आशिक़े रसूल ने इस्लाम और सरकार का दामन फिर भी छोड़ना गवारा नहीं किया। आप पर बेइंतहा जुल्म सितम का यह सैलाब काफ़ी अरसे तक जारी रहा। यारे रसूल सैयदना हजरत सिद्दीकी अकबर उस आशिक सादिम पर इतना जुल्म होते हुए देख रहे थे। एक दिन उनसे रहा ना गया तो वह उमैया के पास गए और उससे कहा कि इस बेगुनाह और मजलूम गुलाम पर इतना जुल्म सितम मत करो। अगर वह एक खुदा की इबादत करता है तो उसमें तुम्हारा क्या नुकसान है, और अगर तुम उसके साथ एहसान करोगे तो वह एहसान आखिरत में तुम्हारे काम आ जाएगा। मैं तुम्हारे ख्यालात आखिरत का कायल नहीं, जो मेरे जी में आए मैं वही करूँगा। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने उसे फिर से समझाया, तुम ताकतवर हो, मगर एक मजबूर गुलाम पर जुल्म करना तुम्हारी शान के खिलाफ है।
तुम अरब की कौमी रिवायत को दाग मत लगाओ। उसने कहा, अगर तुम इस काले गुलाम से इतनी ही हमदर्दी रखते हो तो इसे खरीद क्यों नहीं लेते। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला इस पर राजी हो गए और उसे खरीद कर आज़ाद कर दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सैयदना हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला के आज़ाद होने की खबर मिली तो आप बेइंतहा खुश हुए और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला से फरमाया, मुझे भी इसमें शरीक कर लो। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैं तो बिलाल को पहले ही आज़ाद कर चुका हूँ। सैयदना हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब आज़ाद थे। उन्होंने अपना ज़्यादा वक्त अपने करीम आका की बारगाह अक़दस में गुजारना शुरू कर दिया। मस्जिद में तालीम हासिल की, इल्म सीखा और दीन हक़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश में लग गए। जब हिजरत का वक्त आया तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला भी हज़रत मुज़ाहिरीन के साथ मक्के से मदीना मुनव्वरा चले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के बीच मौका यानी भाईचारे का रिश्ता कायम किया, जिसमें हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला को एक अंसारी भाई मिला। जब मदीने में इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी गई तो यह सवाल उठा कि लोगों को नमाज के लिए कैसे बुलाया जाए। कई तजवीज़ दी गई। कुछ ने कहा कि हर नमाज के वक्त झंडा लहराया जाए, कुछ ने मशवरा दिया कि नगाड़ा बजाया जाए, कुछ ने मशवरा दिया कि आग जलाई जाए, लोग देखकर नमाज के लिए आ जाएं। कुछ ने कहा कि कोई आदमी घर घर जाकर लोगों को बुलाए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सभी तरीकों को नामंजूर कर दिया। इसी दौरान हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख्वाब में देखा कि कोई शख्स उन्हें अजान के अल्फाज सिखा रहा है। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर यह ख्वाब बयान किया। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने भी इसी तरह का ख्वाब देखा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाब को वही इलाही से तस्दीक फरमाया और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला को अजान देने का हुक्म दिया। आप रज़ियल्लाहु ताला इस्लाम के पहले मुअज्जिन रसूल बने। मदीने में फ़िज़ा में अजान गूंज उठी। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान के अल्फाज सिखाए और हिदायत दी कि दोनों उंगलियों को कानों में रखकर बुलंद आवाज़ में अजान दो ताकि तुम्हारी आवाज़ दूर तक पहुँचे। जब मस्जिद नबवी की तामीर हुई तो उसके एक कोने में एक चबूतरा बनाया गया जहाँ से हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अजान दिया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला को मदीना मुनव्वरा में रहने की ताबे ना रही। वो शाम की जंगों में शरीक हो गए और बैतुल मुक़द्दस की फतह में हिस्सा लिया। 16 हिजरी में जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला शाम तशरीफ़ लाए तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने वहाँ अजान दी। इस अजान को सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला और तमाम सहाबा रो पड़े। इसके बाद हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस मदीना आए। जब उन्होंने मदीने में अजान दी तो औरतें घरों से बाहर निकल आईं और शहर में गम की लहर दौड़ गई। कुछ समय बाद हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला शाम वापस चले गए और 20 हिजरी में वहाँ उनका विसाल हो गया। आपको दमिश्क में बाबू शागर के करीब दफन किया गया। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला को आपके विसाल की खबर मिली तो बहे जारो कतार रोने लगे और फरमाया, आहा हमारा सरदार बिलाल भी हमें जुदाई का गम दे गया। मोहब्बत रसूल, आप वो आशिक रसूल थे जिसने अपने यार को देखा तो सब कुछ बर्दाश्त कर लिया मगर दामने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नहीं छोड़ा। अल्लाह करीम हमें भी उनके इश्क का ज़रा सा हिस्सा अता फरमाए और हम सब की बख्शिश फरमाए, आमीन। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।